Okay, so I'll start now. Hi everyone, welcome back to the fourth session of Prior Programming Experience Track of Android Study Dams by DSC ITDTW. I am Ritika Talukdar, your facilitator for this year. So in the last class, till we did a bit of introduction about fragments, and we also looked at different types of layouts and even created a basic layout, right? I hope everyone has revise those concepts. Give me a yes or no on the chat, or you can also unmute yourself. Excuse me, Ritika. Huh? Hi. I'm from the 2020 year mentee. So I was wondering that we had that one assignment जिसके बारे में Discord पे Tanisha दीदी just asked us. So we're actually right now I'm in the Android Study Jam wala track. तो फिर is there any way I we can think get? that is for the old mentees. Yeah, I'm a second year mentee actually. Oh, okay, okay, Yeah, okay. like, can we get the deadline extended because abhi to we are working on the batches, no, for Android Study Yeah, Jam. sure. I'll talk to Tanisha then and I'll let you know. Okay. Okay, okay, cool. Thanks. Welcome. Bye. Okay, so does anyone have any doubts regarding the previous sessions? Okay, I'm assuming that's a no. Okay, so I'll let's start then. Today we will be I'm sorry I did not attend that last session, but I wanted to know this is for 2021 mentees, na? this is for and the participants of Android study jams. Okay. Okay, thank you, Dee. Okay. Yeah, so today we'll be learning how can we add a navigation drawer to our apps. So first of all, what is a navigation drawer? Whenever you open an app, you must have seen that there are three lines beside the title bar, which when clicked, it opens a menu like this given on the right. We usually call that a home button or a menu button. So this menu, this is called a navigation drawer in Android development. This helps us navigate through an app. We will learn how to add this navigation drawer in our apps in this topic. So firstly, you see this icon. This looks like a hamburger, right? So in Android development language, we call this a hamburger icon. When we click on it, a menu like this slides in from the left over our main screen, and we can click on these items and we can navigate through an app, right? So this is called the navigation drawer, this whole thing. And this portion of the navigation drawer is called the drawer header, or simply the header. Here you can have an image view and a text view, and these items are called the menu items. Usually in like an app, for example, in Zomato, we have a dashboard, then we have favorites, order history, profile, about the app, logout. All those options are called menu items. Okay, so this was it about how what a navigation drawer is. I hope everyone understood what I meant by a navigation drawer. So let's code it on the Android Studio. I hope everyone has joined from their laptops, and if yes, then please open Android Studio. Till then, I'll share my screen. Open Android Studio and create a new project. Everyone knows how to create a new project in Android Studio, right? Yes, Or you Dee. can also, okay, so create one, or you can also follow me. Let the Gradle build, and please let me know once you're done till this step.
and your Gradle has finished syncing. Done. Everyone's Gradle has synced. Please say, you can also write on the chat box. Okay, so I'll just move on then. So first of all, we would be needing the layout of the navigation drawer, right? Only then we can add it to our main activity. So first we'll just create a directory called the menu directory. So just click on new directory and name it as menu. Please be sure of the case because this is a case sensitive language. Create a new directory and then we'll create a new layout file in this directory and we'll call it menu drawer. You can see there is the menu tag is already added in this layout file. So let's create a basic navigation drawer. We'll have the dashboard, favorites, profile, and about app in those menu items. And to make those items, we'll just use the item tag and we'll give a title. We'll also give an ID. Make sure every item of your any app that you create or every tag has an ID because that's how you identify your views in when you write the Kotlin code. Similarly, we create all the items for the others. We title it favorites. And about app. Done till here? You can see in the preview that these items are now added to the right side of the screen, but don't worry, we'll add them to the navigation drawer later. We're just creating the layout for now. Is everyone done? Please unmute and say yes or write in the chat once you're done. I'll repeat once more what we have to do. First, create a new project, then make a new directory in the rest folder,
and name it as menu. Then create a new layout. You can create it like this. Go to new and then new menu resource file, and then name it as menu underscore drawer, and then write the following code. I'll just explain this code once again. To make a menu, you use the menu tag, and then to add items to it, like we added these items, we use the item tag. We've given a title to each item and an ID to each item. दी आई डेंट सेव माई प्रोजेक्ट, और वो फिर से बंद हो गया, तो अभी मैं नई एक्टिविटी के लिए एम्प्टी एक्टिविटी करूँ या बेसिक एक्टिविटी करूँ? Empty activity. ओके, थैंक यू. The code is open. You can see it from here. Do we need to mark our attendance somewhere? No, I hope you join this meeting using the RSVP link that was mailed to you. That's how I can see who all joined. DSC platform से ही किया था ना? Yes, Yes. कर रहे थे. हाँ, then your attendance is marked. Dee, can you tell me that how should we be using Android Studio? Because I'm only practicing Kotlin from the website here. What do you mean? Dee, I'm not getting like how should I be using Android Studio? It's a little messed up. Just create a new project ना. See, जो भी आपके XML codes होते हैं ना, you use those files to write your layouts. मतलब आपका वो screen कैसा दिखेगा, वो designing part आप XML से लिखते हो, and those are written in these files. रेस्ट फोल्डर में लेआउट के अंदर आप नए नए XML फाइल्स बनाते हो एंड उसमें आप लिखते हो, एंड जो भी आपकी कॉटलिन की कोडिंग होती है ना, यू राइट इन दीज फाइल्स. यहाँ पे स्टोर होती है वो, जो भी आपका पैकेज नेम होगा उसके अंदर यू क्रिएट अ न्यू फाइल, कॉटलिन फाइल, उसमें आप कॉटलिन की कोडिंग लिखते हो. Have you attended the previous sessions and have you started the badges of the second Yes, track? Dee, yeah, I've started everything, and I've attended the previous session too. Okay, so उसमें तो सारा डिटेल में लिखे होते हैं ना in the code labs? Yeah, Dee, but still there was like a little problem with me. That's why I'm asking. अच्छा, तो वो तो यार प्रैक्टिस से ही होगा. you need जिसमें उसमें बेसिक एप्स है ना, लाइक द राइस रोलर ऐप, एंड देन एक उसमें भी वो भी था कि हेलो वर्ल्ड को चेंज इट इनटू द हैप्पी बर्थडे टेक्स्ट. Yeah, Dee, yeah. ऐसे बेसिक एप्स जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करो कि खुद लिखना. एक बार आपको लॉजिक समझ आ जाए, खुद लिखने की कोशिश करोगे तो वो विद प्रैक्टिस एंड्रॉइड स्टूडियो समझ आ जाएगा. वो विद प्रैक्टिस ही होगा. नो मैटर हाउ मेनी वीडियोस दैट यू वॉच, यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन. एंड जो भी प्रॉब्लम्स होती है मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं बता दूंगी. ओके, I hope everyone is done by now, so I'll move on. Okay, so navigation जो मेन्यू होता है उसमें आप देखते हो ना, यहाँ पे आइकन्स होते हैं, these icons. So let's add these icons also. Right, जो भी आपके आइकन्स होते हैं ना, या आइकन्स, इमेजेस, मैंने पहले भी बताया हुआ है इन प्रीवियस सेशंस, जो भी आपकी इमेज रिलेटेड चीजें होती हैं, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन दिस फोल्डर, दिस ड्रॉएबल फोल्डर. ओके, एंड योर लेआउट्स आर स्टोर्ड हियर. मेन्यू में तो अभी हमने खुद ही क्रिएट किया है. मिप मैप में आपके सिर्फ जो फोन में आइकन दिखता है, जो आपका लॉन्चर आइकन होता है, व्हेन यू इंस्टॉल द ऐप यू सी देयर इज अ आइकन of the app, that image is stored in the map. Otherwise all other icons and images, everything is stored in the drawable folder. So abhi isme humko icon add karna hai, so let's
just right click here, go to new, image asset. ऐसी एक विंडो खुलेगी. इसमें अब यहाँ पे आप देख सकते हो आइकन टाइप इज लॉन्चर आइकन. अगर आप यहाँ इसमें डाल दोगे ना वो जो भी आपको आइकन चाहिए फॉर दिस मेन्यू, तो वो आपका ऐप का लॉन्चर आइकन बन जाएगा. We don't want that. We want to add icons to our menu. So we'll select action bar and tab icons. We'll name it. Let's create for a dashboard first. So we'll create it as IC. IC has to be there. This is mandatory. यहाँ आगे आप अपना names add कर सकते हो. And select clip art. Once you click here, आपके options आ जाएंगे for जो भी आपको icon चाहिए होता है. So since we need for a dashboard, so we'll search dashboard. This looks good. Let's select this. यहाँ से you can change the color. Okay. Hollow dark and hollow dark मतलब it assumes कि आपका जो background है it is of a darker color. So वो आपके icons को white color का बना देता है. And hollow light मतलब it assumes that your background is of a lighter color. So it makes your icons black in color. But let's set a custom color. So just click on custom. You can change the color. I'm choosing red. ठीक है, इतना समझ आया ना? इतना करके just click on next. Leave this as it is and click on finish. Similarly, add 3 more icons for favorite, profile, and about app. एक बार फिर से बता रही हूँ. आप drawable पे right click, go to new, then click on image asset. This window will open. Select action bar and tab icons from this menu. Name your icon, IC underscore whatever name you want to give. Then click on clip art. Select a icon from this menu. And then select whatever color you want. Go to next and then finish. Add 4 icons for each of these menu items. And once you're done, we can add those icons using this code. Just type icon and select the first suggestion that you get. And then write add drawable and choose the icon name. So for dashboard, I'm selecting dashboard. Since I named my icon as IC underscore dashboard, whatever name you have given, you have to select that name. And then add all those icons like this. Once you add, आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा प्रीव्यू में कि आपको कौन से आइकन ऐड हुए हैं. You can double check also. Simple. इतना हो जाए then text on the chat box that you're done.
Done. Okay. Ishita is done. Great. So now the menu has been created. Now we have to add it to our main activity, right? So we'll write the code for the layout of the main menu. When we have to add the drawer layout, okay, so to create the navigation drawer, here you can see this is constraint layout right now, but we have to change it to drawer layout, because for navigation drawers we use drawer layouts. So we'll change it to drawer layout. Give it an ID. Make sure to add IDs to every view that you write. You can remove this since we have changed the layout. एक्सक्यूज मी दी, हाँ बोलो. एक ये ड्रॉयर लेआउट वाला आपने कौन सी लाइन कैसे चेंज की, एक बार दोबारा बता दोगे? ओके ओके. कंस्ट्रेंट लेआउट को जो आपने ड्रॉयर लेआउट बनाया. हाँ, ये बस इतना सा you can change from Android X till constraint layout. Remove that and write drawer and then select the first option that you get. Enter दबा दोगे तो आ जाएगा. ओके. ओके, थैंक यू दी. ओके. सो अब हमको हमने जो वो था कंस्ट्रेंट लेआउट नाम, उसको चेंज करके अपनी जो भी फाइल थी जो हमने बनाई है उसको बना दिया. ड्रॉ लेआउट तो ड्रॉ लेआउट कर दिया. जो कंस्ट्रेंट लेआउट लिखा हुआ था ना, हमने लेआउट चेंज करा है, तो ये टैग हमको चेंज करना पड़ेगा. ड्रॉ कंस्ट्रेंट लेआउट इज फॉर द होल स्क्रीन. आपको जब ड्रॉअर ऐड करना होता है ना स्क्रीन में, तो यू हैव टू चेंज द मेन लेआउट टू ड्रॉअर लेआउट. तो यहाँ पे आपको लिखा होगा एंड्रॉइड एक्स डॉट समथिंग समथिंग, यहाँ पे लिखा होगा कंस्ट्रेंट लेआउट. तो ये पूरा आप सिलेक्ट करके हटा दो एंड जस्ट टाइप ड्रॉअर. आपका फर्स्ट जो सजेशन आएगा जस्ट क्लिक ऑन एंटर और ये चेंज हो जाएगा आपका ओके, थैंक यू. वेलकम. ओके, सो ये हो गया. अब हमको वो ड्रॉअर ऐड करना है, उसके लिए हमको डिजाइन ऐड करना होगा ना. जो मैं बताया था, हेडर लेआउट होता है एंड देन मेन्यू आइटम्स होते हैं. दैट उस डिजाइन के लिए वी हैव टू यूज अ लाइब्रेरी. इट इज कॉल्ड द डिजाइन सपोर्ट लाइब्रेरी एंड यू हैव टू इम्पोर्ट इट टू योर कोड. वो ऑलरेडी एंड्रॉइड स्टूडियो में नहीं होता है. सो जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च डिजाइन सपोर्ट लाइब्रेरी. सर्च करोगे and click on the first link. I'll put this link on the chat box also. Just give me a sec. Yes, so go to this link, everyone, and यहाँ पे साइड में, यहाँ पे आप देखोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो you can see design support library. Just go on this and copy this code. ठीक है, ये वाली लाइन को डिजाइन सपोर्ट लाइब्रेरी लिखा होगा, इसके नीचे जस्ट कॉपी दिस कोड. गो टू योर एंड्रॉइड स्टूडियो. यहाँ पे क्लिक ऑन दिस एरो एंड गो टू बिल्ड और ग्रेडल, द सेकेंड वन. ये फाइल आ गई. अब मैंने बताया था ना हमको ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है, तो इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए वी हैव टू ऐड दैट कोड टू आवर फाइल. तो वो implementation बोलते हैं इसको. टू implement a dependency, that code is called a dependency. So we implement that in our code and that library gets imported to our app. So you just type implementation, single quotes, and then
paste that code that we copied from there. तो यहाँ पे क्लिक कर दो sync now. अरे आई हैव ओके जिसका 4 एंड अबव होगा ना उसमें सिंक नहीं होगा बिकॉज एंड्रॉइड हैज अपेरेंटली चेंज दैट like 1 second let me just check something. अच्छा everyone before implementing that I'm assuming सबके पास 4 and above version ही होगा एंड्रॉइड का सब एक्टिविटी मेन अपने इसमें जिस टेक्स्ट व्यू के जिस नीचे nav टाइप करो आपको ये आ रहा है जैसे मेरा आ रहा है com.google android.material.navigation view ये चीज आ रही है then you don't have to implement that what I just told you because that was for the older versions of Android. अगर सबका ये आ रहा है then leave that, okay? Just tell me सबका ये आ रहा है ना? Go to activity_main and type just open a tag and type nav. ये first line आपकी आनी चाहिए. हाँ दी आ रही है ये वाली सजेशन तो आ हाँ रही है। ठीक है तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है. You don't have to implement this. Already आपको डिजाइन सपोर्ट लाइब्रेरी है. वो हटा दो एंड ऊपर से सिंक नाउ क्लिक कर दो. ठीक है. I'll repeat. Go to activity_main, open a new tag and type nav and select the first option that you get. Width and height को will select as match parent only. And then हमने अभी header layout बनाया था ना. इसमें आप नया बना लेना header layout. बस ये बना के रख देना एक XML file in the layout file and write draw_layer here. Select add layout. क्योंकि आपकी हर स्क्रीन की एक लेयर वो होनी चाहिए लेआउट होनी चाहिए. वही हम डाल रहे हैं. हमने अभी मेन्यू बनाया था मेन्यू ड्रॉर उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे. क्लोज द टैग. या इतना आप लिखोगे अपने activity_main में. ठीक है. कर लिया इतना. Should I move on? ओके सो हाँ इतना कर लिया. अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीव्यू में आ रहा है. अभी यहाँ सिर्फ मेन्यू आइटम्स दिख रही है. हमको ऊपर का पोर्शन भी बनाना है ना जो हेडर बोलते हैं जिसको. सो वी गो टू दिस फाइल draw_header. इसको हम लीनियर लेआउट में चेंज कर देंगे. कुछ भी कर सकते हो. आई विल एड एन इमेज व्यू और एक टेक्स्ट भी डाल देते हैं.
Let's name it navigation drawer only. Okay, let's name it menu. साइज 20 SP डाल देते हैं. String. इमेज के लिए आई होप सबको आता हो इमेज कैसे ऐड करते हैं. हमने पहले भी सीखा हुआ है. कोई भी इमेज आप डाउनलोड कर सकते हो. We are just creating a basic layout that we did in the previous session. Linear layout जो हमने बनाया था वही हम कर रहे हैं. ये ड्रॉअर हेडर के लिए ये तो सबको आता होगा ना, तो ये सब क्रिएट कर लो. To margin also. See, so once you create this linear layout, ये आपका ड्रॉअर का, आप अपना एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका वो नेविगेशन ड्रॉअर कैसा दिख रहा होगा. तो इसके हिसाब से इसको चेंज कर लेना. मैं तो अभी ऐसे ही छोड़ रही हूँ, बट आप जब क्रिएट करोगे तो अच्छे से इसको यहाँ पे ला, देखो इसको आप यहाँ पे लेके आ जाना, मतलब यहाँ पे बीच में ले आना, इसको भी ऊपर ले आना, ताकि यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिखे आपका मेन्यू, थोड़ा बेटर दिखे. आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग. कुछ भी डाउट हो, कुछ भी मुझे रिपीट करना हो तो मुझे बता देना. आई विल रिपीट. तो एक बार ड्रॉअर हेडर वाली फाइल दिखाना. ठीक है, उसका इमेज भी. ओके. तो सिंपल लीनियर लेआउट जो हमने पहले में बनाया था पहली क्लास में, वैसे ही बना देना. और ये आपको होगा एक्टिविटी मेन का. So I'll just explain this code once. Like I said, to create a navigation drawer, we need a drawer layout. तो हमने drawer layout का टैग खोला. ये usually जो होते हैं ऑलरेडी दिखे वो, that is the same thing. हमने width set करी, height set करी, context ये already आता है इसमें, so you don't have to worry much about it. Then we created a text. ये तो text में पहले से था. You can remove this. You don't need it. Yeah. हमारा मेन पेज का बनना है, जो जब आप खोलोगे ना अपना
ऐप जो फर्स्ट पेज मेन एक्टिविटी दिखती है उसका बनेगा। अभी तो ये पूरा होल पेज ले रहा है, आई नो, बट बाद में विल सेट इट, विल जस्ट व्हेन विल राइट द कॉटलिन कोड तो ये साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम मेन्यू खोलेंगे तभी ये स्लाइड इन एंड आउट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ड्रॉअर बनाने के लिए हम यूज द ड्रॉअर लेआउट, एंड एज वी नो ये लेआउट्स हमारे व्यू ग्रुप्स होते हैं, एंड व्यू ग्रुप्स आर मेड अप ऑफ ग्रुप्स ऑफ व्यूज, तो उसके अंदर कुछ व्यू भी होना पड़ेगा। सो नेविगेशन ड्रॉअर के लिए वी यूज द नेविगेशन व्यू टैग। ये अभी न्यूअर एंड्रॉइड स्टूडियो वर्जन में ऑलरेडी ये एडिट होता है, अदरवाइज वी हैव टू यूज द डिजाइन सपोर्ट लाइब्रेरी फॉर दिस। ओके, सो या हम नेविगेशन व्यू हमने खोला ये टैग, यहाँ पे विड्थ एंड हाइट यू ऑलरेडी नो। I told you navigation drawer के two parts होते हैं, we have the menu items and we have the drawer header. So drawer header के लिए हमने header layout add कर दिया, menu items का भी menu add कर दिया, जो हमने ये layout बनाया था, ये हमारा menu items का layout था। This is for our drawer header. किसी का text है क्या? Okay. सॉरी, ओके, हाँ, हमने ये हेडर का बना लिया ये लेआउट, फिर उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। सो नेविगेशन व्यू में आपके ये 4 चीजें होती हैं सिर्फ, हेडर, लेआउट, मेन्यू और उसका विड्थ एंड हाइट। एक और चीज आएगी बट अभी हम रन करके देखेंगे, तब आई टेल यू कि वो क्यों ऐसा हुआ और उसको ठीक करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं। कितना हो गया सबका? एक्सक्यू डाल देते हैं। डिफरेंस समझ आया? आई एम अज्यूमिंग सबका ये हो गया, सो आई एम मूविंग ऑन। ओके, अगर कुछ रिपीट करना हो तो मुझे बता देना। ठीक है, अब हमने ये कर लिया, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। वैसे रन करके फायदा नहीं है क्योंकि ऊपर आ जाएगा। चलो ठीक है, पहले हम इसका कॉटलिन कोड लिख लेते हैं। या तो ओके, लेट्स रन एंड सी। सबको फिर एम्यूलेटर भी आ जाएगा। आप लोग या तो अपने फोन्स कनेक्ट कर लो, और यू कैन यूज योर द वर्चुअल एम्यूलेटर्स आल्सो टू रन योर एप्स। आई एम श्योर सबको आता होगा ये अब तक तो। दी एरर आ गया, बिल्ड ही नहीं हुई। क्या एरर आया? XML डिक्लेरेशन नॉट वेल फॉर्म्ड। स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे? या इशिता, आई विल जस्ट शो। अच्छा नहीं, मैंने शायद कुछ स्किप मतलब मिस कर दिया मैंने शायद। एक मिनट में देखती हूँ। ओके, ड्रॉअर हेडर वाले XML में वो लीनियर लेआउट के ऊपर रेड रेड हो रहा है, पता नहीं क्यों। वो उसको कह रहा है कि लेआउट विड्थ शुड बी डिफाइंड। लेआउट विड्थ बी डिफाइंड। स्क्रीन शेयर करके दिखा दो, मुझे समझ नहीं आएगा। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो, आप स्टॉप करो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। नहीं, यू कैन स्टार्ट। ऐसा आई डोंट थिंक ऐसे होता है क्या? आई हैव टू स्टॉप। अच्छा नहीं, ठीक है, आ रहा है मेरे पास भी ऑप्शन। हाँ, वो है। शेयर नाउ। तो आपने टैग क्लोज ही नहीं किया तो रेड तो आएगा ना? अच्छा, मैंने टैग नहीं क्लोज किया। अब भी नहीं, अब भी आ रहा है रेड तो। नहीं, हाँ, तो अब उसमें कुछ डालना पड़ेगा ना। इसको एंड्रॉइड लेआउट हाँ, मैच पेरेंट कर दो। हाँ, अब दोनों को इसमें बस। हाँ, आगे कुछ अब हमने इसमें ऐड की थी ना। हाँ, अब इसमें इमेज या कुछ टेक्स्ट कुछ तो ऐड कर दो, जो भी आपको अपने
हेडर में चाहिए। अभी के लिए टेक्स्ट डाल के रख सकते हो, एक टेक्स्ट भी ऐड कर दो बस। लीनियर लेआउट जो टैग है उसको क्लोज कर दिया तो अभी ऐड नहीं कर पाओगे, तो वो बैकस्लैश हटा दो। कौन सा वाला, ये? हाँ ये हटा दो, ओके। टैग के अंदर आएगा ना टेक्स्ट व्यू। अच्छा हाँ ठीक है। तो हाँ तो बस वो लीनियर, डाल दो और फिर और टैग इसको क्लोज कर फिर देंगे। इसको आगे वो मतलब वो नहीं करना स्लैश लीनियर लेआउट करके क्लोज, या ये वाले नहीं होते क्लोज? नहीं नहीं, वही तो अभी अब टेक्स्ट व्यू डालोगे ना उसके बाद ही तो बंद करोगे। जैसे मेरी स्क्रीन में देखो, मैंने लास्ट में ये देखो ना, मैंने बंद किया हुआ है ये वाला। हाँ 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 देखा। तो वही पहले ये टेक्स्ट व्यू ऐड करो एंड देन ये क्लोज कर दो। ओके। ठीक है, सो आई मूव ऑन नाउ। अब अभी उसको आपने रन किया होगा तो देखो अभी ऐसे आ रहा है। अभी हमको क्या चाहिए कि ये चीज यहाँ से स्लाइड इन होके आए और यहाँ पे हमारा कुछ आइकन आए जिसको हम क्लिक करके वो ऐसे खुले, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको ये जो हमारा टूल बार है ना, टूल बार आप जब भी देखा होगा, इसे मैं आपको पीपीटी में दिखाती हूँ। ये देखो टूल बार के ऊपर आता है ना ये चीज, जब भी स्लाइड होती है ये टूल बार के ऊपर आ रहा है, ये स्क्रीन थोड़ी ग्रेश हो गई। इसको करने के लिए वी हैव टू चेंज द सेटिंग्स ऑफ आवर टूल बार। अभी हमारा, अभी आप यहाँ स्ट्रिंग्स फोल्डर में जाओगे ना, go to string folder in the values. One sec. Uh, Not the string folder, you have to go to the styles folder. One sec, where is the? Yeah, इसमें थीम्स में, सॉरी पहले स्टाइल होता था, अभी वर्जन चेंज हो गया एंड्रॉइड का। पहले यहाँ पे स्टाइल डॉट एक्सएमएल आता था। ओके, इसमें आप थीम्स में जाओगे, यू कैन सी आपका डार्क एक्शन बार लिखा हुआ है। इसका मतलब डार्क एक्शन बार्स वो होते हैं जो आपके स्क्रीन में ऑलवेज परमानेंटली प्रेजेंट होते हैं ऑन द टॉप। नो मैटर व्हाट यू डू वो हमेशा आपके प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसमें देख रहे हो आपके परमानेंटली है, जबकि ये चीज आपके इसको कवर हो जानी चाहिए थी, है ना। तो इसको हम चेंज करने के, वी चेंज इट टू नो एक्शन बार। से क्या होगा, सो तो नो एक्शन बार ये होता है जो इट इज, जैसे अभी डार्क एक्शन बार मैं आपको बताया परमानेंटली ऊपर आ जाता है ना, नो एक्शन बार वो ऐसे परमानेंटली नहीं होता, कभी आपका वो टूल बार सबसे ऊपर नहीं आएगा until and unless you call it in your Kotlin code। डार्क एक्शन बार आप कॉल करो ना करो वो परमानेंटली हमेशा वहां पे रहेगा। सो वी चेंज दैट इनटू नो एक्शन बार। ठीक है, यहाँ पे भी आप चेंज कर देना। दोनों आपने चेंज कर दिए। फिर गो टू योर मेन एक्टिविटी का लेआउट। अब यहाँ पे हम अपना टूल बार ऐड करेंगे, क्योंकि हम टूल बार तो हमको बस तब हटाना है ना जो हम नेविगेशन ड्रॉर हम स्लाइड कर रहे होंगे, ऐसे तो हमको चाहिए। सो विल ऐड अ टूल बार ये हियर आपकी एंड फॉर स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे तो नहीं दिख रही। अदर्स दिख रही है ना। हाँ दिख रही है। ओके सो ख्याति, या आई थिंक ख्याति इट वाज। Okay, then I'll pin it. I think I've missed it. I'll pin it. Thank you, Dee. ओके हाँ, सो ये हाँ, तो अभी हमको टूल बार तब तब चाहिए जब हम लेआउट, जब हमारा जब मेन्यू हमारा बंद हो। सो विल ऐड अ टूल बार हियर। उसके लिए हम कोऑर्डिनेटर, जब भी हमको नो एक्शन बार यूज करते हैं ना और फिर हमको टूल बार खुद से ऐड करना होता है, सो यूज अ कोऑर्डिनेटर लेआउट। आप इसे कोऑर्डिनेटर टाइप करोगे तो आ जाएगा। उसको एक विड्थ दे दो। एक आईडी दे दो।
कोऑर्डिनेटर लेआउट आपने टैग खोला एंड यहाँ पे ऐसे टैग क्लोज कर लो. इसके अंदर वे ऐड द टूल बार. टूल बार के लिए भी दिस टाइप टूल वो आ जाएगा. गिव द width as match parent, height as wrap content. क्योंकि विड्थ तो हमको पूरी स्क्रीन तक चाहिए ना, एंड हाइट wrap content बिकॉज जितना हमारा टाइटल का साइज होगा उतना ही फिर वो टूल बार होगा. कलर आप कुछ भी दे सकते हो बैकग्राउंड के लिए. मैंने प्राइमरी कलर ले लिया. So you can just write your hash code. कोई भी कलर का हैश कोड लिख सकते हो. ये हमने क्यों दिया? बिकॉज सपोज कुछ टाइटल ना हो, तो अगर कुछ टाइटल का कुछ लिखा ना हो, अगर आपकी टूल बार में सिर्फ ब्लैंक हो, तो ये आपको मिनिमम हाइट दे देगा. जो भी स्टैंडर्ड टूल बार का साइज होता है ना, वो आपको मिनिमम हाइट दे देगा आपके टूल बार को. सो दिस इज इम्पोर्टेंट, अदरवाइज फिर वो आपका टूल बार मतलब आता ही नहीं है स्क्रीन में. सो दिस इज हाउ यू ऐड योर टूल बार टू द मेन स्क्रीन. अब इसको अब रन करके देखते हैं. देखो अब वो टूल बार हट गया ना. अब इसको हम जब डाल देंगे अपने एज अ जो स्वाइप इन स्वाइप आउट का ऑप्शन होता है ना, उसको बोलते हैं टॉगल. तो जब इसको हम टॉगल का वे दे देंगे तो ये आपका टूल बार आ जाएगा. अभी हमको नहीं चाहिए था तो वो हट गया. ये फुल स्क्रीन इसने कवर कर दी. ठीक है, इतना हो गया ना. बस 2 टैग्स आपको ऐड करने इन द एक्टिविटी मेन. फॉर द कोऑर्डिनेटर लेआउट फॉर द टूल बार एंड देन द टूल बार इटसेल्फ. And before that, you need to change the dark action bar to no action bar in your themes.xml file. यहाँ पे dark action bar लिखा होगा, उसको आप no action bar कर दो. In both of these files, theme में भी और XML में भी, इसमें भी इसमें भी. Done? Yes या no तो बता दो. Okay, so I'm assuming कि आपका हो गया है. I'll move on. अब अभी के लिए बस ये लिख के रख लो, ये फ्रेम लेआउट. आई विल एक्सप्लेन दिस जो हम इसका यूज करेंगे. अभी के लिए बस ये ऐड करके रख दो फ्रेम लेआउट. जस्ट टाइप फ्रेम लेआउट एंड विथ और हाइट दोनों में राइट फिल. जिस फिल लिखोगे तो आपका सजेशन में आ जाएगा. एंड उसको एक आईडी दे दो. आईडी का नेम दे दो फ्रेम. एंड दिस विल कम इनसाइड योर कोऑर्डिनेटर लेआउट. ड्रॉअर के नेविगेशन के ऊपर, कोऑर्डिनेटर के अंदर, बिफोर यू क्लोज द कोऑर्डिनेटर लेआउट.
ठीक है, सो मैं अज्यूमिंग आपका हो गया होगा, बस इतना से ऐड करना था। So, अब तो ये तो हो गया, हमने लेआउट भी बना ली, हमने ये इसको ऐड भी कर दिया अपने स्क्रीन में। अब जैसे हमको बोला इसको हमको एक मेन्यू का फॉर्म देना होगा, सो विल स्टार्ट राइटिंग आवर कॉटलिन कोड। सबसे पहले विल इनिशियलाइज सम वेरिएबल्स। जितने भी हमने लेआउट्स बनाए हैं, टूल बार बनाए हैं, हर एक के लिए वी हैव टू क्रिएट वेरिएबल्स। ऐसे करके हमको सारे बनाने पड़ेंगे। हमने ड्रॉ लेआउट बनाया था सबसे पहले, उसके लिए बनाया, फिर अभी हमने कोऑर्डिनेटर लेआउट बनाया था जस्ट अभी, उसके लिए भी हम बनाएंगे। फिर टूल बार बनाया, उसके लिए भी हम वेरिएबल। फ्रेम लेआउट मैंने अभी आपको ऐड करने को बोला, उसके लिए भी। फिर नेविगेशन व्यू भी डाला था, उसके लिए भी हम डाल देंगे। हमने लेट इनिट इसलिए किया बिकॉज अभी तो हम सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, इनको इनिशियलाइज लेटर करेंगे इन द कोड, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन लेट इनिट। ये सारे हमने बना लिए, अब हम इनको इनिशियलाइज करेंगे। सो ऑन क्रिएट के अंदर ही सब कुछ होता है। अब इनको सारे हम आईडीज दे देंगे। अगर कभी आपको यहाँ पे रेड आ रहा है ना, मतलब आपने वो इनिशियलाइज नहीं किया है और उसमें आईडी नहीं दी है, तो वो वहाँ पे जाके दे देना। जैसे अभी मैंने कईयों में मैं भूल गई थी डालना, तो मैंने ऐड कर दिया। हमने वेरिएबल्स बनाए, उनको भी गिव देम द वैल्यूज। लेआउट्स के लिए बनाए थे, तो लेआउट का जो हमने बनाया ये फाइल्स, उनके आईडीज डाल दिए। अब सारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो गए। अब हमको क्या चाहिए, सबसे पहले वो टूल बार हमको सेट करना पड़ेगा। हमने टूल बार का लेआउट तो हमने डाल दिया यहाँ पे, ये हमने क्रिएट तो कर दिया, बट इसको कोड भी लिखना पड़ेगा ना कॉटलिन का। तो उसके लिए वी विल क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड सेटअप टूल बार। आप कुछ भी नेम दे सकते हो, मैं सेटअप टूल बार दे रही हूँ। इसके अंदर we will use the method called set support action bar। इससे क्या होता है, जो हमारा टूल बार होता है ना, वो इनेबल हो जाता है, मतलब वो डिस्प्ले हो जाता है हमारे स्क्रीन में। so we'll just write set support action bar। यहाँ पे अपना टूल बार जो हमने बनाया था उसको हमने पास कर दिया।
ये जो टूलबार बनाया था इसको हमने पास कर दिया। फिर हम उसको एक टाइटल दे देंगे। टाइटल जो भी आपको अपनी ऐप के टाइटल देना है, मैं होम दे देती हूँ। ठीक है, अब इसमें हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया ताकि वो टूल बार हमारे सेट हो जाए। वी यूज द मेथड कॉल्ड सेट सपोर्ट एक्शन बार। इससे वो इनेबल कर देता है द टूल बार ऑन आवर स्क्रीन्स एंड वी पास द टूल बार दिस वेरिएबल दैट वी क्रिएटेड। इस वेरिएबल से हमने जो टूल बार यहाँ पे बनाया था उसको हमने अटैच किया था, ये हमने अटैच किया था, तो वही टूल बार हमने इस मेथड को पास कर दिया। अभी फंक्शन तो बना दिया, इसको हमको मेन क्लास में हमारा इन कॉटन जो जैसे हमारा प्रोग्रामिंग में जो वॉइड मेन इंट मेन होता है वो हमारे कॉटलिन में फॉर एप्स वी हैव दैट एज ऑन क्रिएट ना, तो यहाँ पे हमको बुलाना भी पड़ेगा इस फंक्शन को। फंक्शन तो हम कॉल कर देते हैं। मैंने विजिट का चूज कर लिया। यहाँ पे मेक श्योर आपने ये वाला सेलेक्ट किया हो क्योंकि हमने ये वाला विजिट यहाँ पे यूज किया है ना, एंड्रॉइड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैट, तो ये सेम चीज यहाँ पे भी आनी चाहिए। सो ये हम रन करके देखते हैं। अच्छा अभी दिखेगा नहीं क्योंकि हमने हटाया नहीं है। ठीक है, इतना आप लिख लो, फिर हम उसको ड्रॉअर में डालते हैं, फिर हम देख पाएंगे कि हमारा टूल बार आया या नहीं। सबने इतना कर लिया? प्रिया व्हाट हैपेंड? मैं वो कर रही थी, रन करने की कोशिश, पता नहीं क्या हुआ, सब ग्रे ग्रे होके क्रैश हो गया था एंड्रॉइड स्टूडियो। अभी वापस रीलॉन्च किया है। अच्छा अच्छा ओके, मुझे बता देना फिर कब हो जाए, फिर मैं तभी स्टार्ट कर दूंगी आगे। मैं ये कोड चैट में डाल रही हूँ बिकॉज आई थिंक स्लो हो सकते हैं किसी किसी की टाइपिंग, तो मैंने चैट में डाल दिया है कि जस्ट कॉपी पेस्ट योर दिस कोड इन योर मेन एक्टिविटी कॉटन फाइल।
ये कोड पूरा नहीं आ रहा। अच्छा वापस से भेजती हूँ। कहाँ तक आया है? ड्रॉ लेआउट तक आई थिंक यहाँ तक आया है ना। ओके तो मैं 2 हाफ्स में भेज रही हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ है। ये सेकंड हाफ। अब आ गया। ओके प्रिया आपका हो गया? दियर और हो सकता अभी भी पूरे ही आ रहे हैं। वो रन नहीं हो रहा मेरा, पता नहीं कहाँ कहाँ पे मेरे से ब्रैकेट्स वैकेट्स छूट गए होंगे, देखना पड़ेगा खोल के। अच्छा वो ठीक मतलब है तो बार बार कभी किसी एक्सएमएल में जाके कहता है कि इस एक्सएमएल में प्रॉब्लम है, कभी किसी में, तो अच्छा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके मैं ये कोड्स अभी शेयर कर दूंगी आफ्टर दिस सेशन। अगर बहुत अभी अगर सॉल्व करने हैं तो मुझे बता, या तो मैं अभी सारा कर देती हूँ। अगर आपको सेशन के बाद मेरे से सॉल्व करवाने हैं एरर्स तो मैं कर दूंगी, वरना आप लास्ट में एक बार देख लेना, फिर भी नहीं होगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है। ठीक है तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। इशिता सौम्या बढ़ जाओ ना, हो गया आप दोनों का। Can you please show activity main again? ओके ये रहा। अब नीचे भी है मतलब, एक सेकेंड। हाँ इसका भी कोड डाल देती हूँ, ठीक है, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। सो अभी इसी से कर लो। ये कंप्लीट कर लेना, ये विच इक्वल्स टू मैच पेरेंट फुल आएगा वो। ये फुल कोड है फॉर एक्टिविटी मेन। So I'm moving on now. ठीक है तो हमने ये कर दिया। अब जैसे मैंने अब हम फाइनली वो मेन्यू बनाएंगे, उसको हम एक ड्रॉअर का फॉर्मेट देंगे। तो सबसे पहले गो टू योर स्ट्रिंग्स फोल्डर, यहाँ पे वैल्यू फिर स्ट्रिंग्स, यहाँ पे 2 न्यू स्ट्रिंग्स डाल दो। ये सेम चीज एक बार कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ऐसे 2 डाल दो और यहाँ पे नेम डालो ओपन अंडरस्कोर ड्रॉअर, और एक में डालो क्लोज अंडरस्कोर ड्रॉअर।
ये 2 लाइन्स मैंने चैट पे डाल दिया. ये 2 लाइन्स जस्ट ऐड टू योर स्ट्रिंग फोल्डर. स्ट्रिंग फाइल, आई एम सॉरी, नॉट फोल्डर. strings.xml फाइल. ठीक है, ये ऐड कर दो. फिर गो टू योर मेन एक्टिविटी. अब हम डालें मेन एक्टिविटी. अब तो सबसे पहले आप जब ऐप खोलते हो, होम पेज खोलते हो, तो अभी जो मैं बताया था हैमबर्गर आइकन, वो 3 लाइन्स. तो वो जो आइकन होता है ना, वो जो बटन होता है, दैट बटन इज कॉल्ड द होम बटन, जिसको क्लिक करने से आपका मेन्यू खुलता है. तो सबसे पहले हमको वो होम बटन इनेबल करना पड़ेगा. तो हम होम बटन डालेंगे. उसके लिए सपोर्ट एक्शन बार क्वेश्चन मार्क डॉट सेट होम बटन. ये रहा सेट होम बटन इनेबल्ड, और इसमें हम कर देंगे ट्रू. हमने इनेबल किया, फिर उसको डिस्प्ले भी करना होगा, तो हम डिस्प्ले को भी कर देंगे ट्रू. ये आपके आएगा मेन एक्टिविटी डॉट kt फाइल में इनसाइड द फंक्शन. इससे हमने टूल बार इनेबल किया था, फिर टूल बार का टाइटल सेट किया, फिर इससे हमने वो होम बटन को इनेबल करा, देन होम बटन को डिस्प्ले भी कर दिया. इसलिए हमने वैल्यूज ट्रू दे दी. एक बार रन करके देखते हैं इसका. एक सेकेंड. ओके, होम बटन इनेबल हो गया, हमने उसको डिस्प्ले भी कर दिया. फिर अब हमको यहाँ हाँ उस पर क्लिक का ऑप्शन भी डालना होगा. तो वैल करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे एक्शन बार. मैंने आपको बताया था ना, वो स्लाइड इन एंड स्लाइड आउट के उस एक्ट को बोलते हैं टॉगल. तो हमको एक टॉगल डालना पड़ेगा. तो एक्शन बार टॉगल हमने नाम दे दिया, इक्वल टू वही सेम नेम का हम मेथड भी बुला लेंगे. अभी मैं बस ये कोड लिख रही हूँ, फिर बताती हूँ.
ओके, हमने अभी ये एक्शन बार डाला यहाँ पे, उसको इनेबल भी कर दिया। अब हमको चाहिए कि हम जब उस होम बटन को क्लिक करें तो कुछ वो स्लाइड इन स्लाइड आउट का ऑप्शन का हो, तो उसके लिए हमको एक टॉगल डालना पड़ता है उस एक्शन उस मतलब ताकि टॉगल मतलब उस पर क्लिक करोगे तो वो से स्लाइड इन स्लाइड आउट होगा, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया, उसका हमने नाम जो हमने फंक्शन जो यूज करते हैं हम टॉगल यूज करने के सेम नेम का हमने वेरिएबल बना दिया। इसको ए छोटा रखना ताकि वो अलग अलग उसको ट्रीट करे। ये फंक्शन होता है एक्शन बार ड्रॉअर टॉगल। इसमें इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले कि कौन से एक्टिविटी में आपको वो एक्शन बार डालना है, तो हमने मेन एक्टिविटी में डाला है इसलिए हमने दिस @मेन एक्टिविटी लिखा। अगर कोई और एक्टिविटी होती तो हम @ के आगे उस एक्टिविटी का नेम डाल देते। सेकेंड पैरामीटर होता है जो भी आपका लेआउट है, हमने ड्रॉ लेआउट नेम दिया है उस ड्रॉअर का, तो हम उस ड्रॉ लेआउट का नाम दे दिया। अभी हमने 2 स्ट्रिंग्स बनाई थी ना, ओपन ड्रॉअर एंड क्लोज ड्रॉअर, उसका मतलब है ये आपकी 2 स्टेट दे देगा आपके ड्रॉअर को कि एक बार वो ओपन होगी और एक बार क्लोज होगी, बिकॉज हमको हमेशा तो ओपन नहीं रखना ना उसको, इसलिए तो हमने 2 स्टेट्स दे दिए कि वो एक बार ओपन होगी फिर क्लोज होगी। इससे वो टॉगल ऐड हो गया। फिर ये तो हमने अभी वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, फिर उसको यूज भी करना होगा। तो यूज करने के लिए हमने क्या कि उस जो हमने हमारी ड्रॉअर लेआउट इसलिए बार बार आ रहा है बिकॉज जो हमारा एक्टिविटी मेन का जो मेन लेआउट है ना वो ड्रॉअर है, उसका नाम ड्रॉअर लेआउट है, इसलिए हमने ये बार बार यूज कर रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हमने जो मेन लेआउट है उसमें जब वो क्लिक करेगा, उस कोई भी यूजर जब उस ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो हमारा ये एक्शन बार टॉगल हो जाएगा। टॉगल मतलब वही स्लाइड इन स्लाइड आउट, कि उस पर क्लिक किया तो एक बार ओपन हो गया, फिर अगर वह उसको यूजर ने स्वाइप बाहर की तरफ स्वाइप कर दिया तो वो क्लोज हो जाएगा। हाँ, एक सेकेंड, आई थिंक मैंने कुछ तो गलती करी है इसलिए वो फुल स्क्रीन पे आ रहा है। ओ या रिमेम्बर मैंने बताया था नेविगेशन मेन्यू में हमको एक चीज डालनी होती है जो मैं जब रन करके दिखाऊंगी फिर बताऊंगी क्यों हमने वो नहीं डाली। सो अभी जैसे देख रहे हो मैं जब भी रन कर रही हूँ ये फुल स्क्रीन दे रहा है, बट हम जब जो असली मेन्यू होता है इसमें आप देखोगे वो स्क्रीन के ऊपर आता है ना, तो मतलब वो मतलब अगर हम इसे उसको इसको अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो मतलब इसकी ग्रेविटी और इसकी ग्रेविटी डिफरेंट है, राइट। ये थोड़ा नीचे है, ये उसी के ऊपर आ रहा है, तो ये हमको सेट करना होता है एंड दिस इज सेट यूजिंग लेआउट ग्रेविटी। ये सिंटैक्स होता है, आप इसमें लिखोगे लेआउट ग्रेविटी, लेआउट अंडरस्कोर ग्रेविटी, सॉरी एंड्रॉइड भी आएगा। देखो जैसे ही मैंने ये लिखा हमारा वो चीज यहाँ पे साइड में चला गया, तो इसका मतलब ये जो आपका मेन स्क्रीन है उसके ऊपर आ गया ये चीज जो अभी हमने बनाई थी जो इधर शिफ्ट हो गई। सो ये आपका वो होता है, इसलिए आप ऐड कर लेना अपने एक्टिविटी मेन में। मैं ये चैट में डाल देती हूँ इन केस। सो जैसे हमने ये ऐड कर दिया, आप देखो जो अभी हमारा फुल स्क्रीन हो रहा था वो साइड में चला गया, मतलब वो उसी स्क्रीन के ऊपर ग्रेविटेट करता रहेगा, इसलिए इसका नाम लेआउट ग्रेविटी होता है। और स्टार्ट मतलब हम उसको स्टार्ट कर दिया कि वो मतलब सेट हो जाए स्टार्ट। अब हम रन करेंगे अपने ऐप को। तो सी
हमारा होम बटन आ गया। अभी हमने इसको हैमबर्गर आइकन में चेंज नहीं किया है, इसलिए वो ऐसा बटन आ रहा है। तो ये आ जाएगा, हमने होम पेज दिया था मैंने नेम टाइटल को, हमारा टूल बार भी आ गया। नाउ इफ यू क्लिक हियर, अच्छा क्लिक का हमने डाला नहीं है, इसको आप स्लाइड करोगे तो आपका मेन्यू आ गया, देन स्लाइड आउट। अभी अगर आप अपने फोन्स में करोगे ना तो आप तब भी ऐसे कर सकते हो। सी हमारा मेन्यू ऐड हो गया। अब ये बैक बटन जैसा दिख रहा है, हमको चाहिए कि इस पे क्लिक हो अब तब जाके ये मेन्यू खुले। तो इसके लिए वी विल ऐड, फर्स्ट वी विल हैव टू चेंज दिस इनटू अ हैमबर्गर आइकन। हैमबर्गर मतलब वो 3 लाइंस। सो उसके लिए हम एक नया फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन नहीं, उसको एक मेथड ही होता है। Outside your on create, that method is called on option item selected. On option, ये वाला, this method. इससे ये मेथड यूज करके हम जो अभी हमारा यहाँ पे ये बैक बटन आ रहा है ना, इस पे इसको हम चेंज कर देंगे हैमबर्गर में। और ऐसे ये फंक्शनैलिटी आ जाएगी कि आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये मेन्यू ऐसे खुलेगा जो इस पे क्लिक करोगे। ये फंक्शनैलिटी डालने के लिए वी यूज दिस फंक्शन कॉल्ड ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड। जब आप लिखोगे ऑन ऑप्शन तो अपने आप आ जाएगा सजेशन में। इसके लिए सबसे पहले तो हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। कुछ भी यूज करने के लिए हमको एक वेरिएबल बनाना होता है, तो हम आईडी बनाया। अब हमको जो नाउ सी, हमको यहाँ पे क्या चाहिए कि जब क्लिक हो तो ये मेन्यू आइटम्स आ जाए ना, कि ये चीज खुलनी चाहिए। और ये हमने इसका नाम, इसको हम मेन्यू आइटम्स बोलते हैं, इसको हेडर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमने आइटम क्रिएट किया था वो आइटम लेंगे। हमने आइटम को आईडी दी थी, वो आईडी डाल देंगे, उसे इनिशियलाइज कर देंगे। देन वी यूज अ इफ स्टेटमेंट कि अगर जो ये आईडी है, ये जो ये जो आइटम है ना, थिंक ऑफ इट एज जो भी आपके टूल बार में जो भी होता है, अगर यहाँ पे भी आप कुछ मेन्यू डालो या ये बटन, दीज थिंग्स आर कॉल्ड आइटम्स। ठीक है, जस्ट बेसिक नॉलेज समझने के लिए समझ लो कि जो भी आप अगर इस टाइटल को भी डालोगे इसको भी हम एक आइटम भी बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो हम डाल रहे इफ, ये जो आईडी है इसका मतलब ये जो ये बटन को हमने आइटम बोला, इस बटन को हमने नाम दे दिया आईडी। ठीक है, अब हमको क्या चेक करना है कि अगर यूजर ने एक कोई भी इस स्क्रीन पे, सपोज आपकी स्क्रीन में और भी तो बटन होंगे ना, सिर्फ ऐसे ब्लैंक स्क्रीन तो होगी नहीं। तो हमको क्या चेक करना है कि जब भी यूजर इस बटन को दबाता है, मतलब जब ये बटन अगर हमारा होम बटन है तभी ये मेन्यू खुलना चाहिए। मतलब अभी मैंने रन नहीं किया इसलिए खुल नहीं रहा, कि मैं फिर से रन कर देती हूँ। हमको क्या चाहिए कि जब अच्छा अभी रन नहीं होगा बिकॉज मैं नहीं देख रही हूँ। ओके, अभी आपके फोन पे तो रन हो रहा होगा ना, आप उसमें देखोगे। हमें चाहिए कि जब भी यूजर एक होम बटन को क्लिक करे तभी वो मेन्यू खुले। अगर कोई और बटन है स्क्रीन पे उसको क्लिक करने से मेन्यू नहीं खोलना चाहिए। तो ये चेक करने के तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं ना। सो विल चेक इफ द आइटम दैट इज क्लिक्ड इज द होम बटन। मतलब इफ हमने आइटम का नाम आईडी दिया हुआ है, तो इफ आईडी इज इक्वल टू एंड्रॉइड .r.id.home, वो होम बटन होता है ना। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये आईडी जो हमने आइटम क्लिक किया उसका आईडी इज इट इक्वल टू द होम बटन का आईडी। इफ यस तो वो मेन्यू खुलना चाहिए। तो हम डालेंगे इफ यस देन ड्रॉ लेआउट का वो मेन्यू को खोल दो। ओपन ड्रॉर, वो जो मैंने बताया ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट वही। अगर वो आईडी इज इक्वल टू द होम बटन का आईडी तो वो ड्रॉर लेआउट का पे, ड्रॉर लेआउट मतलब हमारा मेन स्क्रीन का लेआउट,
उस पे आप वो ड्रॉर ओपन कर दो और ग्रेविटी को स्टार्ट कर दो, मतलब वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। सी, अब इसमें क्लिक किया तो आपका मेन्यू खुल गया। ये तो हमको चाहिए था। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू एड द नेविगेशन ड्रॉअर टू योर एप्स। अब इसमें अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो आपका ये नहीं चलेगा, बिकॉज हमने इसमें कुछ क्लिक का फंक्शनैलिटी डाली नहीं है ना। बट आपका मेन पर्पस तो यही था कि हमको ये ऐड करना है। ये ऐड हो गया। इसमें कुछ डाउट किसी को भी? क्या मैं ये कोड भेज दूं, या मैं सेशन के बाद ये सारे कोड्स भेज दूंगी? किसी को इसमें कुछ डाउट, इस कोड में कुछ डाउट तो मुझसे पूछ लो। यस या नो ही बता दो। अगर नो डाउट्स भी है तो लिख दो नो। ठीक है, so do you want me to teach how, if you want to add any clicks to it, कि ये आपको डैशबोर्ड क्लिक हो तो आपका डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जाना चाहिए, फेवरेट्स क्लिक हो या प्रोफाइल का तो वो पेज खुल जाना है। अभी मैं सिखाऊं या आप बैजेस करते टाइम खुद सीख लोगे? बिकॉज द टाइम इज 7:37 नाउ एंड द सेशन वाज टिल 7:30। इफ यू वांट आई कैन टीच इट राइट नाउ, या आप खुद से भी आप बैजेस के टाइम कर सकते हो, एंड देन लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। अच्छा प्रिया, उसके लिए ना हमको पहले फ्रैगमेंट्स वी हैव टू क्रिएट। आपको जैसे हमने ये मेन एक्टिविटी बनाई है ना, तो यहाँ पे जाके आपको ये फ्रैगमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। फिर उस फ्रैगमेंट, मतलब ऐसे क्विकली समझ नहीं आएगा, उसके लिए हमको पहले फ्रैगमेंट आपने क्रिएट किया, फिर यहाँ पे ऑन क्रिएट के अंदर आप व्हेन यूज करोगे। व्हेन कोई भी एक वेरिएबल पहले लोगे, उसको आप फ्रैगमेंट से वो दोगे, जैसे हमने ये करते हैं ना, इनिशियलाइज करोगे, सॉरी फॉरगॉट द वर्ड इनिशियलाइज करोगे। फिर उसको चेक करोगे कि क्या वो जो सिलेक्ट किया हुआ आइटम, क्या वो आपका डैशबोर्ड वाला है, डैशबोर्ड वाला आईडी है। अगर वो, जैसे अभी हम यहाँ पे चेक किया, एंड्रॉइड r.id.home आया था, उसमें डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, इसमें आप चेक करोगे कि वो अगर डैशबोर्ड है तो आप फ्रैगमेंट, ये यहाँ पे आप क्रिएट करोगे ना डैशबोर्ड का फ्रैगमेंट, उसको आप कॉल कर दो। अगर वो प्रोफाइल का आईडी है, इसको हम आईडी बोल रहे हैं ना, प्रोफाइल का आईडी है तो प्रोफाइल का फ्रैगमेंट खोल दो। फ्रैगमेंट या एक्टिविटी जो भी आपको क्रिएट करना हो, आपकी मर्जी है। फेवरेट्स का आईडी है तो वैसे ही, मतलब जैसे व्हेन भी यूज कर सकते, व्हेन विल बी इजियर, क्योंकि इफ एल्स करोगे तो बहुत लंबा कोड हो जाएगा, व्हेन छोटा होता है। तो बस वही आपको करना है, आपको बस चेक करना है एंड देन उस फ्रैगमेंट या एक्टिविटी को कॉल कर देना है। तो बेसिक तो यही होगा। Okay, so then I'll wrap up. ठीक है ना? अगर आप खुद से ट्राई करना, अगर वो हो रहा होगा या कुछ हो रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं होगा तो जस्ट लेट मी नो, मैं बता दूंगी कैसे करते हैं। ठीक है, मैं ना ऐसे स्टेप्स लिख के मैं ग्रुप पे डाल दूंगी इफ यू वांट, या मैं ऐसे स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको वो वीडियो शेयर कर दूंगी। इफ यू वांट जस्ट लेट मी नो ऑन द ग्रुप। So I'll just wrap up then. Okay, so how about we try code labs and then let you know. Yeah, that's what I said. Try the code labs and first just try making this thing that I just explained, how to add the functionality to the menu items. एक बार खुद से try करो, it's easy. आपको बस एक when statement use करना है. You first have to create a variable.
देन व्हेन स्टेटमेंट में वो वेरिएबल को पास करो, देन चेक कि जो वो वेरिएबल होगा उसको आप वही आइटम से, जैसे हमने आइटम आईडी लिया था ना, उसी से आप इनिशियलाइज करोगे। फिर उसको आप चेक करोगे वेन के अंदर कि क्या वो डैशबोर्ड r.id.dashboard की इक्वल है। अगर है तो फिर आप डैशबोर्ड का एक्टिविटी या डैशबोर्ड का फ्रैगमेंट जो भी आप बनाना चाहो उसको आप कॉल कर दो। और सिमिलरली फॉर एवरी केस, बहुत ईजी है, आप एक बार खुद से ट्राई करो, फिर नहीं होगा तो ऑब्वियसली यू कैन ट्राई द कोड लैब्स, दैट इजंट एन इशू। कोड लैब्स में तो है, सब कुछ है। ठीक है, so that brings us to the end of the session, guys. So the deadline to complete all the 10 batches of prior programming track is 25th January 12 p.m. You need to upload the screenshots of your developer profile in the Google form, which will be shared on the WhatsApp group after this session. The forms will close at noon, so please make sure that you fill it before the deadline. I hope you enjoyed today's session and learned something new. You can share your experience about Android Study Jams on your social media handles using these hashtags, and don't forget to tag us. You can tag me also. So thank you for joining in, guys. Have a good day. Bye-bye.